Yeah, good morning everyone. In the last class, we did consider the application of matrices and determinants for solving the given system of linear equations. Two equations in two variables, followed by three equations in three variables. To recap what we already have done, quickly check out this question. Solve the system of equations using matrix method. So I am given with three equations in three variables. Get the coefficient matrices. A हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ऐसे ही x लिख दिया और ये B मैट्रिक्स आ गया यहां से. This is only possible when determinant of this coefficient matrix A is non-zero. Calculate it. 10 आ गया, which is non-zero, means unique solution. After that we need to have the inverse of this matrix A. और इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर्स लिखते हैं हम. Check this out. Repeatedly we are using the same idea of finding out the cofactors. Cofactors are written then in the form of a matrix, a cofactor matrix, and take its transpose to get the adjoint matrix, followed by the formula of A inverse, 1 by determinant A into adjoint A. We already calculated determinant A as 10. Substitute. So I have A inverse with me. अब ये मेरे पास A inverse है और X होता है A inverse into B. Substitute the values. Multiply and keep this 1 by 10 outside only, because the product will give you the numerical values which must be generally divisible by 10, so that we have our answer 2 minus 1 and 1. So I'm sure you all must have practiced how to get the values of x, y and z. A very similar question, और बस लैंग्वेज को थोड़ा ऐसे लिख दिया है. Check this out. If A is given, find A inverse. Using A inverse, solve the system of following equations. Check this out. It is not making any difference, क्योंकि अगर आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स ध्यान से देखें तो ये 2, 3, 5, 2 minus 3 and 5 सेम लिया है. 3, 2 minus 1 minus 4 and 1, 1 minus 2 सभी सेम लिया हुआ है. तो exactly the question is similar to the previous questions. Determinant A non-zero, minus 1 आ गया, A inverse exists. Find out cofactors. Cofactor matrix. Transpose to get the adjoint matrix. A inverse formula. Substitute. Determinant A is minus 1. We already calculated. Finally, X is A inverse B. Substitute. Multiply two matrices, which is very simple, and get the values of X, Y and Z. This is in fact a quick recall of what I'm sure everyone knows now very well. Even if we have a simple word problem, likewise check out this question. The cost of 4 kg onion, 3 kg wheat and 2 kg rice is rupees 60. Then the second equation, third condition वगैरह दिया है, and you need to find the cost of each item per kg by matrix method.
ऑब्वियसली हम क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ अनियन, व्हीट एंड राइस ले लिया XYZ रुपीज। तो चेक दिस आउट, गिवन सिचुएशन क्या एक्सप्रेस हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन, 4 kg अनियन, x kg ये लिया था तो 4x हो गया, प्लस 3y हो गया एंड प्लस 2z हो गया, और मिलाकर वो था 60 रुपीज। Similarly, from second and third, we have the following equations. Now we just need to find out the solution, how we are going to solve these three equations. Method is exactly the similar. Check this out. Determinant A50 non-zero. कोफैक्टर्स लिख लिए। क्विकली इसको शो करने का पर्पज ये है, वंस आई विल शेयर द पीडीएफ विद यू, आप अपने आप पहले सॉल्व कीजिए इन क्वेश्चंस को, एंड देन यू कैन इजीली मैच योर आंसर्स, एंड इफ एनी कैलकुलेशन में कहीं लगता है यू कैन गो थ्रू दैट। कोफैक्टर मैट्रिक्स एडजॉइंट आ गया, ए इनवर्स फार्मूला, मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस और give you x as 5, y as 8 and z as 8, means cost of onion rupees 5 per kg, cost of wheat rupees 8 per kg, cost of rice 8 per kg. The only point is NCERT was written in, ये जो अभी हम एडिशन पढ़ रहे हैं वो 2008 में या 2009 में लास्ट रिवाइज हुआ था। आई इवन डोंट बिलीव कि तब भी अनियन या वीट का कॉस्ट 5 रुपए 8 रुपए रहा होगा। एनीवे, the data should be somehow realistic. Consider this question. Check this out. Solve the given system of equations. Now I'm taking few questions from your assignment. 2 by x minus 3 by y plus 3 by z is 10. 1 by x plus 1 by y plus 1 by z is 10. 3 by x minus 1 by y plus 2 by z is 13. सोचिए जरा ध्यान से, हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, एनीवन? So we will Sir, take X matrix 1 by X, 1 by Y और 1 by Yes. Z. आप या तो 1 by x को a कह दो, 1 by y को b, 1 by z को c, और उसके बिना भी हम इससे डायरेक्टली कर सकते हैं। इन अ वे, इसे देखकर आप क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 2 minus 3 3, ये कोफिशिएंट्स, फिर यहाँ से 1 1 1, 3 minus 1 2, and x will be then becomes 1 by x, 1 by y and 1 by z, and b मैट्रिक्स आपने ले लिया 10 10 13. इनिशियली गेट इट्स डिटर्मिनेंट, तो आप चेक कर लीजिए क्विकली इसका डिटर्मिनेंट, that -3 and 3 into -1 minus 3. So 2 into 3 plus 3 into -1 plus 3 into -4. This is 6 minus 3 minus 12. कितना आ गया ये? -9. excuse me sir. Yes. So यहाँ -3 नहीं होगा? कहाँ पर? So the first line 2 हाँ. -3 into 2 -3. आप रूल भूल गए डिटर्मिनेंट का, प्लस माइनस प्लस होता है ना ऑल्टरनेटिव। ओके, याद आ गया? तो वो माइनस माइनस प्लस कर देगा ना, ये वाला फिर प्लस कर देगा रूल डिटर्मिनेंट को निकालने में। सो दिस इम्प्लाई ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स लिखने होते हैं, तो रिकॉल वो A11, A12, A13, A21,
A22 and A23, A31, A32 and A33. So A11 कोफैक्टर्स लिखने में शुरू कर रहा हूं. फोकस ऑन A ओनली. तो A11 आपका सिंपली हो जाए. ये याद रखना, डायमंड शेप वाले एलिमेंट्स जो भी होते हैं, मींस ये 4 पोजीशन, इनके साइन चेंज करने होते हैं क्योंकि इनका सबस्क्रिप्ट का सम ऑड है. एनीवे, A11 हो गया 2 + 1 3, A12 2 - 3 -1, sign will change. What is A13? I'm waiting. What is A13? Yes, anyone? लविश के अलावा भी कोई आंसर आए मेरे पास? दिस इज क्लियरली -4 आ रहा है. A21 देखा, इस एलिमेंट को फोकस कर रहा है. तो A21 निकालने का मेथड क्या था? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की पोजीशन के रो और कॉलम को हाइड कर दो और जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो. तो अगर अब हम ये डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये कितना आ गया? -6 + 3, विच इज -3, बट साइन विल चेंज, ये 3 आ जाएगा. ऐसे ही A22 कितना हो जाएगा? अब वो सोचिए आप ध्यान से. A22, सो A22 किसे रेफर कर रहा था? यस, A22 के लिए इस पोजीशन के एलिमेंट्स को हाइड कर दिया और बचा हुआ डिटर्मिनेंट निकाल दिया, विच रेफर्स टू 4 - 9, विच इज -5. Similarly, get remaining other values. अब ये प्रॉपर सॉल्व कर रहा हूं मैं, सीधा प्रेजेंटेशन नहीं चलाई है. तो करके देखिए आप साथ में. A23 कितना आ रहा है? A23 इस पोजीशन, इस एलिमेंट के रेफर करेगा, हाइड कर दो. एंड देन दिस इज -2, प्रोडक्ट कर दिया ये, एंड देन माइनस माइनस प्लस 9 7, sign will change. नेक्स्ट A31 देखिए क्या आने वाला है. A31 के लिए इस पोजीशन को कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड करा, बचा हुआ डिटर्मिनेंट कितना है? -3 - 3, -6 आ गया. नेक्स्ट A32 के लिए दिस पोजीशन हाइड कर दिया, गेट द डिटर्मिनेंट विच इज 2 - 3, -1, sign will change. And finally, for A33, this position hide, get the determinant of remaining, so that would be 2 + 3, which is 5. Check it out. ये जो मैंने किया है ये अभी कोफैक्टर्स आए हैं. तो therefore what will be cofactor matrix? That would be 3 1 - 4, 3 - 5 - 7, -6 1 5. और कोफैक्टर मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज ले लिया टू गेट दी एडजॉइंट. दिस इज दी वर्किंग रूल जो हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं.
Any doubt to anyone up to this step? चलो आंसर एक बार देख लेंगे. Once I have the adjoint, अब हमने इसके बाद क्या करा था? Now A इनवर्स होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A. तो ये कितना आ गया? 1 बाय -9 टाइम्स दिस एडजॉइंट. सो ये A इनवर्स लिखा गया है. दिस इज माई A इनवर्स. अब A इनवर्स लिखने के बाद हम क्या करते हैं? नाउ AX के इज इक्वल टू B और X इज A इनवर्स इंटू B. तो -1/9 ये A इनवर्स लिख दिया. एंड इनटू मैट्रिक्स B, और B इज दिस 10 10 13. मल्टीप्लाई देम टुगेदर. ये -1/9 बाहर ही रहने देना. And go about this multiplication. Check this out. I'm waiting. आई डाउट लविश के शायद इस तरह के आंसर आता है इस क्वेश्चन में. Most likely it might be an integer solution, so that one need to check it out. करके देखिए जरा. मैं भी करता हूं आगे सॉल्व. सो आप चेक कर सकते हैं. फर्स्ट मेरे पास क्या वैल्यू आएगा यहां पर? दिस इंटू दिस. ये कर दिया. तो फर्स्ट एलिमेंट वुड बी 30 एंड देन +30 माइनस 13 इंटू 6 हो रहा है 78. राइट. तो चेक इट आउट. मैं पहले एक ही वैल्यू को जरा मैच करके देखता हूं. ये कितना आ गया? 60 माइनस 78 हो गया -18. तो आइडिया लग रहा है कि x की वैल्यू इस तरह से 1/x की वैल्यू 2 आ रही है ना. तो लविश चेक इट आउट. योर कैलकुलेशन कहीं गलती हुई है. इसके बाद क्या करेंगे? सेकंड y के लिए जो बेसिकली यूज होगा, आप इसे और इसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं. प्लीज गो अबाउट दिस कैलकुलेशन. सो ये आ गया 10 -50 एंड +13. सो ये हो गया 50 है और 23 माइनस कर दिया 7. 27 with negative sign -27. फाइनली ये और ये मल्टीप्लाई होंगे. सो व्हाट आई एम गेटिंग? दिस इज -40 -70 एंड +65. तो ये आ गया -45. ये तो डायरेक्ट पता चल रहा है. सो दैट ये जब आप डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू? 2 3 5. ये मेरा x की वैल्यू आई है और x एक्चुअल में कितना था? 1/x 1/y एंड 1/z. सो फाइनली आप जब रेसिप्रोकल कर देंगे, x is 1/2, y is 1/3 and z is 1/5, which is your required answer. ओके, अब देखो एक वैल्यू लविश गलत लेने से
सारा क्वेश्चन चेंज और सारी वैल्यूज गलत हो जाएंगी. सो नोट डाउन द क्वेश्चन प्रॉपरली, प्रॉपर कैलकुलेशन कीजिए, चेक दिस आउट, एंड एनी डाउट यू कैन आस्क. Consider this. Now, this is a different type of a question. Very important. कई बार बोर्ड में इस तरह के दिए गए हैं. Find the product of these two matrices and use it for solving the given system of equations. So, सबसे पहला काम तो आपको प्रोडक्ट निकालने को कहा है. So let me just find out AB. फिर हम उसके बाद फर्दर देखेंगे क्वेश्चन. सॉल्व कीजिए. व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन? देखिए जरा ध्यान से. तो चेक इट आउट. फर्स्ट एलिमेंट कैसे, ये और ये मल्टीप्लाई कर देंगे एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड. तो -5 +3 +6 which is 4. नेक्स्ट एलिमेंट ये और ये मल्टीप्लाई होगा एंड दिस वुड बी -5 +2 +3. यस, ठीक है, राइट समृद्धि, ये 0 आ रहा है. और नेक्स्ट आप चेक करिए, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंगली. So this value would be -10 plus 1 and +9, which is again 0, right? Similarly, you go about the multiplication and what you will get, 4 0 0 0 4 0 0 0 4. Questions are framed in such a way that you will always get ultimately actually one identity type of a matrix. इसका मतलब ये कितना आ गया? अगर आप 4 कॉमन निकाल दें, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, and which can be written as 4i. That is AB प्रोडक्ट हमने देख लिया, वो आ गया है 4i. And in such type of question it will always happen. 7i आ सकता था, -2i आ सकता था, बट आएगा इसी तरह से. अब अगर आप गिवन सिस्टम को ध्यान से देखें, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में क्या हुआ है? Given system of equations can be written as coefficients लिख रहा हूं, 1 1 2 3 2 1, ये मैं यहां देख रहा हूं इनसे, एंड यहां से आ गया 2 1 3, दिस इनटू x y z, एंड ये है किसके इक्वल? 1 7 and 2. That is, any special observation?
यस, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बी। अगर आप ध्यान से देखें, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम आई हुई है। ये ए से भी मैच कर सकता था, बी से भी, बट दिस इज मस्ट बी आवर नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो ये मैच कर गए आपस में, तो मैं इसकी जगह मतलब यहां क्या लिख सकता हूं, बी एक्स, और यहां सी लेना पड़ेगा क्योंकि ए नोटेशन ऑलरेडी यूज हो चुकी है। वेयर व्हाट आई हैव टेकन, एक्स हो गया ऑब्वियसली, एंड सी इज ऑब्वियसली 1 7 एंड 2। अब आप सोचिए, अगर बी एक्स इज सी तो एक्स कितना आ जाएगा, बी इनवर्स इंटू सी। प्री मल्टीप्लाई कर दिया विद बी इनवर्स बोथ द साइड्स। अब आप सोचिए, जो मैंने ये रिलेशन निकाला था ये स्टार्टिंग में, ए बी इज इक्वल टू 4i, हमें इस प्रोडक्ट को ही यूज करना था। इसकी जगह यहाँ क्या क्वेश्चन में लिख देते थे, लैंग्वेज, और हेंस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। क्या मतलब, अब आपको मैट्रिक्स मेथड नहीं लगाना है सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज हम वही को फैक्टर है, जॉइंट और इनवर्स वगैरह लगाते थे। बट एज पर द लैंग्वेज ऑफ दिस क्वेश्चन, बी वेरी वेरी केयरफुल। नंबर ऑफ टाइम आई हैव ऑब्जर्व स्टूडेंट्स प्रोडक्ट निकाल के अलग छोड़ देते हैं और फिर गिवन सिस्टम को आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। नो मार्क्स विल बी गिवन टू यू, चाहे आपका एक्स वाई जेड सही भी आ जाए। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि ये स्पेसिफिकली कहा गया है कि आपको प्रोडक्ट को ही यूज करना है टू गेट दी आंसर। अब यहां पर मुझे बी इनवर्स चाहिए इस रिलेशन से, यहां फोकस करिए लेफ्ट साइड में, मुझे बी इनवर्स चाहिए। तो आप दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो बी इनवर्स के साथ, लाइक दिस। लॉजिकली सोचो, इससे क्या होगा, ये ए इंटू ये आई मैट्रिक्स आ गया, और ये क्या दे देगा, सिंपली आई के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सेम रहता है, और अल्टीमेटली बी इनवर्स इज, ये भी ए बचेगा सिर्फ, और बी इनवर्स कितना आ गया, 1/4 टाइम्स ए ओनली। आप ये लॉजिकली डायरेक्ट सोच सकते थे, but it is always good practice if you show 1 or 2 steps behind the screen जो चलते हैं। b इनवर्स की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो x क्या आ जाएगा, 1/4 a इंटू सी। और आप जरा ध्यान से सोचिए, a मुझे गिवन है, ये रहा क्वेश्चन में, और ये रहा c। तो आप a की वैल्यू लिख दो, -51371 -5, एंड c आ गया 172। इट इज अ नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन एज वी ऑलरेडी हैव डन। आप ये मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यूज को 4 से डिवाइड कर दो, आई विल गेट द वैल्यूज ऑफ x y एंड z। Please make a note of it. I am waiting for a minute. कोई भी डाउट है
तो प्लीज डू आस्क. ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन फॉर यू. ध्यान से समझिए, दो अलग अलग चीजों को नोट करना है या ऑब्जर्व करना है. चेक दिस आउट. वेरी फर्स्ट थिंग, आपको प्रोडक्ट बी ए निकालना है, नॉट ए बी. यस, तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे? यूजुअल मेथड से. यस, बी ए प्रोडक्ट निकाल लेंगे. सो बी ए यूजुअल मेथड है. आई एम नॉट सॉल्विंग इट कंप्लीटली, एक सिर्फ हिंट आपको देना है. यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये आइडेंटिटी की फॉर्म में ही आएगा. ये भी मैं आपको बता चुका हूं, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल है. क्विकली मैं चेक करता हूं, फर्स्ट एलिमेंट ही बता देगा. तो ये 2 + 4 एंड 0. इसका मतलब एक फर्स्ट A11 लिखते ही हमें क्लियर हो जाएगा कि ये एक्चुअल में इसके इक्वल आ रहा है. आप एक बार क्रॉस चेक प्लीज करके देख लीजिए. तो बी ए एक्चुअल में 6i आएगा, बट यू हैव टू शो इट. वंस आई हैव दिस, अभी मुझे नहीं पता आई रिक्वायर बी इनवर्स और ए इनवर्स. अब जरा आप गिवन इक्वेशंस को ध्यान से देखिए. विद विच मैट्रिक्स ये मैच कर रहा है? यस. ओके लविश, आप चेक करिए कोफिशिएंट्स क्या हैं इसके. 1 0 1 2, यहां से हैं 0 1 2. फिर क्या है? 1 -1 0. और इधर क्या है? 2 3 4. ये एक्चुअल में देखूं तो ना ही ए से रिजेंबल हुआ डायरेक्टली, ना ही बी से. बट बी को तो मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता. मैं इन इक्वेशंस को तो अकॉर्डिंगली लिख सकता हूं री इंटरचेंज करके, क्योंकि अगर आप कोफिशिएंट्स को ध्यान से देखें तो ये मैट्रिक्स बी के साथ रिजेंबल कर रहा है. कैसे? आप सबसे पहले गिवन सिस्टम कैन बी रीअरेंज्ड, कैन बी रीअरेंज्ड. क्या रीअरेंज करूंगा? सबसे पहले मैं सेकंड इक्वेशन को लिख देता हूं ये, फिर मैं थर्ड इक्वेशन को लिख देता हूं, और फिर हमारे पास y + 2z = 7. क्यों? क्योंकि अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया? 1 -1 0, 2 3 4, 0 1 2 into xyz, and that is equal to 3 17 and 7. So that it will now match with matrix B जो आपको गिवन है यहाँ. एंड अब आप इजीली B इनवर्स निकाल के सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन. आई रिमेंबर जब ये आज से कुछ सालों पहले फर्स्ट टाइम बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था, तब मेनी स्टूडेंट्स कुड नॉट डू इट. वो सिर्फ कोफिशिएंट मैट्रिक्स को वहीं इंटरचेंज, या ये 317 7 की जगह 7 317 लिख रहे हैं. तो हाईली कंफ्यूजन वाज देयर. एक छोटा सा कॉमन सेंस को नहीं अप्लाई करा कि इक्वेशंस को भी तो हम इजीली रीअरेंज कर सकते हैं. I'm sure the idea is clear to everyone.
Okay, so do a good practice of matrices and determinant and complete this. From next class जब हम start करेंगे, that is your chapter 2, inverse trigonometry. But to define the inverse of a function, chapter 1 का एक छोटा सा idea है about inverse of a function, वो मैं introduce करूंगा, basic idea to define the inverse trigonometric functions, and then we will proceed. चैप्टर 1 हम यूजुअली हमेशा लास्ट में लेते हैं, मतलब अब इसके बाद मैं करवाऊंगा चैप्टर नंबर 2 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, यहां तक तो हमारा और एक तरह से ऑर्डर सेम रहेगा. बाकी आगे चेंजेस जो हैं यू विल बी इन्फॉर्म्ड अकॉर्डिंगली. एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सिमिलर ही है, लॉजिक बेस्ड है, वो मैंने अभी लिया नहीं है, वो मैं आपको अलग से होमवर्क में भेज रहा हूं. सो यू मस्ट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. चलिए, एंडिंग द क्लास नाउ. You can leave. Thank you and have a good day. Thank you, sir. Okay, thank you. Bye bye.